Namaste students, hope all you are fine and stay home and focus on your studies. In previous lecture we discussed about meristematic tissue and today we discuss about permanent tissue. Permanent tissue. Permanent tissue are those tissue they do not divide, they lose the ability to divide. जो divide नहीं करते और divide करने की ability को lost कर देते हैं, that is known as permanent tissue. And now one thing I tell you about differentiation. The process of taking up permanent shape, permanent size and permanent function, that is known as differentiation. एक permanent shape बन जाना, एक permanent size बन जाना और एक permanent function perform करें वो, उस process को हम क्या बोलते हैं? Differentiation. The process of taking up permanent shape, size and function. Function is known as differentiation. Clear? Next we discuss types of permanent tissue. Two types: simple permanent tissue and complex permanent tissue. Firstly, I tell the meaning of simple permanent tissue. Simple permanent tissue are those tissue which is made up of a single type of सेल्स, जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सेल. दीज आर थ्री टाइप्स: पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. फर्स्टली वी डिस्कस पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. These have a small spherical oval polygonal in shape and intercellular space between the cell is present. इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है और इनके अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है और जो इनकी वॉल होती है थिन सेल वॉल होती है और थिन सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी होती है. इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से ये स्टोरेज का काम करते हैं. दैट हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड. फर्स्ट पॉइंट इज द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा हैव ए थिन सेल वॉल which is made up of cellulose. And second point, intercellular space between the cells is large intercellular space होता है, so it helps in the storage of food. Next one I tell you about these. shape is small, oval shape की भी हो सकती है, may be oval shape और may be spherical in shape. Now I tell the shape is spherical. Spherical in shape or maybe in oval in shape. Second point, large intercellular space. Large intercellular space. Third point, thin cellulose wall. Cellulose cell wall. और इंटरसेलुलर स्पेस होने की वजह से विच हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड की स्टोरेज करने में हेल्प करते हैं. सो पैरेन्काइमा आर टू टाइप.
in some situation parenchyma contain chloroplast that consist of a pigment that are known as chlorophyll, and that type of parenchyma is known as क्लोरनकाइमा। उस टाइप के पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं? क्लोरनकाइमा। क्लोरनकाइमा। जब पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट हो और वो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करे तो उस टाइप के पैरेनकाइमा को हम बोलते हैं क्लोरनकाइमा। थर्ड, नेक्स्ट वन, एरेनकाइमा। 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 इन एक्वेटिक प्लांट्स एयर कैविटीज आर प्रेजेंट बिटवीन द सेल्स। एयर कैविटीज प्रेजेंट होती हैं दैट हेल्प्स इन द बॉयंसी। बॉयंसी का मतलब होता है दैट एबिलिटी टू फ्लोट दैम, फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। दिस टाइप ऑफ पैरेनकाइमा इज नोन एज एरेनकाइमा। Again I tell you about, in aquatic plants air cavities are present between the parenchymatous cells and that help in the buoyancy. Buoyancy means the ability to float, float करने में help करते हैं। This type of parenchyma is known as एरेनकाइमा। नेक्स्ट वन, फर्स्ट सिंपल परमानेंट टिश्यू इज पैरेनकाइमा, सेकेंड टिश्यू इज कोलनकाइमा। कोलनकाइमा। कोलनकाइमा, these have thin cell wall, these have irregularly thickened। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है राउंडेड एंड ओवल शेप्ड। And these are irregularly thickened. These are thickened at the corners. Like this. These have a irregularly thickened. These are thickened at the corners, and its cell wall is made up of cellulose and पैक्टिन। इसकी सेल वॉल बनी होती थी पैरेनकाइमा की सिर्फ सेलुलोज से, और इसकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन से। इसमें क्या होता है? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट, बट इन कोलनकाइमा लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट वन, इट हेल्प्स इन द प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट्स। ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करता है प्लांट पार्ट्स को, और दैट इज प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ स्टॉक। लीफ की जो स्टॉक होती है उसकी बाहर की कवरिंग होती है, उसकी इनर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, एंड दे हेल्प इन द इजी बेंडिंग ऑफ लीफ विदाउट ब्रेकिंग। आसानी से उसको बेंड करने में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, और वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेल इर्रेगुलरली थीकन्ड सेल वॉल। इर्रेगुलरली थीकन्ड, irregularly thickened cell wall which is made up of cellulose and pectin. Cellulose and pectin. Next I tell you, little intercellular space present between them. Little intercellular space होता है, little intercellular space is present. Intercellular space is present. Next one, it provide mechanical support. Mechanical support provide करने में help करते हैं, and they provide flexibility. Flexibility provide करते हैं, and that present below the epidermis of leaf. एपिडर्मिस क्या होता है? जो आउटर कवरिंग होती है लीफ की, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, और ये एपिडर्मिस की
लेयर के नीचे प्रेजेंट होता है, दैट प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस ऑफ लीफ। और लीफ की इजी बेंडिंग करने में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग। नेक्स्ट वन we discuss about sclerenchyma. Sclerenchyma thick-walled. Sclerenchyma cell wall is thick and which is made up of a substance. That substance is known as लिग्निन। लिग्निन एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है स्क्लीरेनकाइमा सेल वॉल के पास। और कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आता है विच सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन द स्क्लीरेनकाइमा सेल वॉल, दैट इज नोन एज लिग्निन। लिग्निन होता है नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, इसके अंदर कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। एंड दीज मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड, ये डेड होती हैं, ये ओनली मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। और ये मेनली स्क्लीरेनकाइमा प्लांट्स के हार्ड पार्ट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो वी डिस्कस सेल वॉल इज थिक। देखो मैं कंपेयर कर रही हूँ पैरेन्काइमा को भी, कोलनकाइमा को भी और स्क्लीरेनकाइमा को। पैरेन्काइमा की वॉल थी थिन, कोलनकाइमा की इर्रेगुलरली थिकन्ड और स्क्लीरेनकाइमा की सेल वॉल है थिक। क्लियर? नेक्स्ट वन, थिक which is made up of a substance, that substance is known as lignin। अब देखो मैं फिर से तीनों को कंपेयर करूंगी। पैरेन्काइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, कोलनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, स्क्लीरेनकाइमा सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। Next point, the intercellular space is absent. Intercellular space is absent. जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है इसके अंदर अब्सेंट होता है। अब मैं तीनों के पॉइंट कंपेयर करूंगी फिर से। पैरेन्काइमा के अंदर लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है और कोलनकाइमा में लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस होता है और स्क्लीरेनकाइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस अब्सेंट होता है। इज इट क्लियर? दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। कोलनकाइमा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, इजी बेंडिंग में हेल्प करता है विदाउट ब्रेकिंग द प्लांट पार्ट्स। एंड स्क्लीरेनकाइमा दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वन, दीज सेल्स आर डेड। पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा लिविंग सेल्स हैं, बट स्क्लीरेनकाइमा दीज आर डेड सेल्स। Clear? Now I tell you about the location of sclerenchyma that present in the husk of coconut. In the husk of coconut. कोकोनट, जो कोकोनट होता है उसके बाहर का जो ब्राउन कलर का होता है उसको बोलते हैं हम हस्क ऑफ कोकोनट, और उसके अंदर स्क्लीरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं दैट प्रेजेंट इन द हस्क ऑफ कोकोनट्स। एंड outer covering of seeds and nuts। सीड्स और नट्स की आउटर कवरिंग के पास प्रेजेंट होते हैं,
नाउ नेक्स्ट, इन द वेन्स ऑफ लीफ, इन द वेन्स ऑफ लीफ, लीव्स की वेन्स में प्रेजेंट होते हैं। वेन्स क्या होती हैं? जैसे लीफ है, लीफ के अंदर इस तरह से लाइंस बनी होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वेन्स। in the veins of leaves sclerenchymatous tissue is present. Next one I tell you about around the vascular bundles, around the vascular bundles. वस्कुलर बंडल्स के चारों ओर प्रेजेंट होती हैं। वस्कुलर बंडल्स होते हैं जो कंडक्शन का काम करते हैं, जो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट एपिडर्मिस। Next one is epidermis. एपिडर्मिस क्या होता है? आउटर कवरिंग। जो भी रूट, स्टेम, लीफ की आउटर कवरिंग होती है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस लेयर होती है इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। एपिडर्मिस इज ए कॉन्टिन्यूस लेयर, नो इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट, कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होता और ये प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते रखती है प्लांट्स को। पैरासिटिक अटैक, कोई भी पैरासाइट है जो प्लांट पे अटैक करता है उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। अगेन आई टेल यू अबाउट एपिडर्मिस हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट पार्ट्स की प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है। मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करके रखती है। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पैरासिटिक अटैक। पैरासाइट्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, वो अटैक करते हैं प्लांट पे और उनको डिजीज कर देते हैं, पर एपिडर्मिस उसको पैरासिटिक अटैक को प्रिवेंट करने में हेल्प करती है एपिडर्मिस। और ये एपिडर्मिस लेयर स्टेम के अंदर, रूट के अंदर, लीफ के अंदर प्रेजेंट होती है। और डेजर्ट्स प्लांट्स होते हैं जहाँ पे ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, वहाँ पे ये एपिडर्मिस एक वैक्सी कोटिंग बना लेते हैं। इस तरह से वैक्सी कोटिंग आ जाती है इस पे, जिस वैक्सी कोटिंग को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल उसको प्रोटेक्शन करने में हेल्प करती है और वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं मैक्सिमम वाटर इवेपोरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। और डेजर्ट एरिया के अंदर जो भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है एपिडर्मिस के बाहर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। और क्यूटिकल वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ कि लीफ की एपिडर्मिस होती है, लीफ की एपिडर्मिस पे एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। स्टोमेटा इज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। दैट इज बीन शेप्ड, दैट आर नोन एज गार्ड सेल्स, and central is known as stomatal pore. Stomatal pore. Again I tell you about on the leaf of epidermis. एपिडर्मिस की लीफ पर टीनी पोर्स बने होते हैं। उन टीनी पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। एंड स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज 2 गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स की शेप किडनी की तरह होती है, किडनी शेप्ड होती हैं, और सेंट्रल पार्ट इज नोन एज स्टोमेटल पोर। ये स्टोमेटा प्लांट्स के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में हेल्प करता है और ट्रांसपीरेशन में हेल्प करता है। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। नाउ यू राइट स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा आर द टीनी पोर्स, टीनी पोर्स
present in the epidermis of लीफ की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं और इनके फंक्शंस क्या है? फर्स्ट वन इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, रेस्पिरेशन में वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो दे हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सेकेंड फंक्शन इज दे हेल्प इन द ट्रांसपीरेशन का क्या मतलब होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर का लॉस करना वेपर फॉर्म में, दैट इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। जितना भी हम पानी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, उससे मैक्सिमम वाटर वो इवेपोरेट कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। क्लियर? नेक्स्ट आई टेल यू अबाउट, you know about in the epidermis of root hair is present like this। जो रूट की एपिडर्मिस होती है उनके ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। रूट्स पानी को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, मिनरल्स को ऑब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, इसलिए रूट हेयर्स सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी की ऑब्जॉर्प्शन कर सकें। सो एपिडर्मिस ऑफ रूट हैव ए hair like structure that are known as root hairs which increase the surface area for maximum absorption of water and minerals। Is it clear? Now I tell you about stem। जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर मैंने अभी आपको बताया था एक वैक्सी कोटिंग आ जाती है। इन डेजर्ट प्लांट्स that helps in the protection of desert plant and they prevent the loss of water, मतलब पानी के लॉस होने से बचाती है। नेक्स्ट वन आई टेल यू अबाउट कॉर्क ऑफ ट्री। जो भी ट्रीज के इंटरनल पार्ट पर सेल्स होती हैं उनके अंदर एक सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है, उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं सुब्रिन की डिपोजिशन होती है। बार्क ऑफ ट्री होता है, जो इंटरनल सेल्स होती हैं ट्री की, उसे हम बोलते हैं बार्क ऑफ ट्री। बार्क ऑफ ट्री के अंदर एक सेल्स होती हैं, एक सब्सटेंस डिपॉजिट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? सुब्रिन। ये सुब्रिन इम्परमिएबल बना देता है प्लांट सेल्स को, ना तो वो वाटर की अब्जॉर्प्शन करते हैं ना वो फूड की अब्जॉर्प्शन करते हैं, वो इम्परमिएबल बना देते हैं। सो बार्क ऑफ ट्री दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स के अंदर मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होते हैं जिसके अंदर सुब्रिन की डिपोजिशन होती है, ना तो उन्हें वाटर चाहिए ना उन्हें फूड चाहिए, तो इम्परमिएबल बन जाते हैं वो वाटर के लिए और फूड के लिए। नेक्स्ट वन वी डिस्कस अबाउट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। Next we discuss about complex permanent tissue। Complex permanent tissue। Complex permanent tissue are those tissue which is made up of more than one type of cell। जो एक टाइप की सेल से ज़्यादा टाइप की सेल से मिलकर बने हो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। नाउ आई कंपेयर विद सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या होता है? एक टाइप की सेल से, कई बच्चे क्या लिख देते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ ए वन सेल, दैट इज मेड अप ऑफ ए मोर देन वन सेल। रॉन्ग। सिंपल परमानेंट टिश्यू आर दोज टिश्यू विच इज मेड अप ऑफ ए वन टाइप ऑफ सेल, and complex permanent tissue are those tissue which is made up of more than one type of cell। These are two types, xylem and phloem। Xylem and phloem। इन जाइलम फ्लोएम को हम ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू भी कहते हैं, वस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, वस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं, और ये दोनों वाटर और फूड की ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करते हैं। जाइलम 4 टाइप की सेल से मिलकर बना हुआ है। ट्रैकेट्स, वेसल्स
vessels, xylem parenchyma and xylem fiber. और फ्लोएम भी 4 टाइप की सेल से मिलकर बना है. These cells are sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fiber. जो जाइलम की सेल्स होती हैं, मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड होती हैं, और जो फ्लोएम की सेल्स होती हैं, दीज आर लिविंग एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर. एक फ्लोएम फाइबर को छोड़कर बाकी सारी सेल्स क्या होती हैं, लिविंग होती हैं, और इसमें मेनली सारी सेल्स डेड होती हैं. नेक्स्ट वन, जाइलम हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. वाटर की ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है. वाटर्स एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स, रूट से लेकर अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है. और फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है फ्रॉम लीफ टू द अदर ग्रोइंग पार्ट, क्योंकि फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट लीफ के अंदर बनता है, और लीफ से दूसरे पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करने में फ्लोएम हेल्प करता है. जाइलम ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, ओनली वन डायरेक्शन के अंदर, और फ्लोएम मूवमेंट करता है इन बाई डायरेक्शनल. बाई डायरेक्शनल मीन्स अपवर्ड आल्सो, डाउनवर्ड आल्सो. सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. वाटर्स और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स. और अपवर्ड डायरेक्शन में, ओनली अपवर्ड डायरेक्शन में, ओनली यूनिडायरेक्शनल. सेम इसी तरह फ्लोएम में ये वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, और ये दोनों डायरेक्शनल में करता है, बाय डायरेक्शनल. इज इट क्लियर बेटा? Now our plant tissue is completed, and next video I will discuss about animal tissue. Thanks for watching. So you wait for next video. In next video I will discuss animal tissue.